جی میں ڈاکٹر ذوالفقار علی کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ اینڈ وزٹنگ سائیکیٹرسٹ آف دل پسند ریہیبلیٹیشن سینٹر. ڈاکٹر محمد آصف نوید جنرل پریکٹیشنر اور ساتھ میں ایم او کے فیصلہ انجام دے ہوں دل پسند ریہیب سینٹر کے اندر. جی السلام علیکم، میرا نام سیف اللہ ہے اور میں دل پسند وزٹرز کو وزٹ کرنے آئے ہیں. جی السلام علیکم. اپنا نام بتائیے. میرا نام کامل کمال ہے جی. ہوں. میں یہاں پہ ایز اے پیشنٹ ہوں. کب سے؟ مجھے تقریباً 3 منتھس ہونے والے ہیں. آپ خود سے آئے تھے یا آپ لائے گئے تھے؟ لائے گئے. کیا مسئلہ تھا جس کے لیے آپ کو یہاں لائے؟ میں ڈرگس وغیرہ یوز کرتا تھا. کون کون سی ڈرگس یوز کرتے تھے؟ آئس اور کوکین. اچھا، سب سے پہلے کیا شروع کیا تھا؟ سب سے پہلے ایش چرس. کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ آج سے 12-13 سال پہلے. اس کے بعد کیا سٹارٹ کیا؟ اس کے بعد آئس. کتنے سال پہلے کی بات؟ 2013 7-8 سال. آئس استعمال. اس کے علاوہ کیا یوز کیا؟ ڈرگس کون کون سی؟ وائٹ کرسٹل براؤن. یعنی کوئی چھوڑی نہیں آپ نے؟ جی جی. پولی سبسٹنس یوز کر کے ہوا نا جی. جی جی. تو آپ کو جس وقت لایا گیا آپ ریڈی نہیں تھے آنے کے لیے؟ نہیں. کیا وجہ؟ ریڈی اس سے کچھ کہہ بھی سکتے ہیں کہ آپ بس یعنی پوری طرح زندگی یاد نہیں تھے اور یہ بھی شاید اویئرنیس نہیں ہوگی کہ نشہ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں اور نقصانات کیا ہیں. جی جی. کیا کوئی اویئرنیس تھی؟ نہیں تھی. تو تبھی آپ ریڈی نہیں تھے نشہ چھوڑنے کے لیے. آپ اکیلے کرتے تھے یا دوستوں میں؟ میں پہلے دوستوں کے ساتھ کرتا تھا، مطلب گیدرنگ میں کالج اسٹوڈنٹ لائف میں. اس کے بعد جب میں شادی شدہ ہوں، شادی ہو گئی میری، اس کے بعد پھر اکیلا بیٹھ کے کرتا ہوں. چلو اب ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ نے ہیش کا استعمال شروع کیا کافی سال پہلے، جی جی، تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ میں اسکول میں نا جا کے واپس آیا، اسکول چھوڑ دیا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد بیڈ فرینڈس بنے میرے، ان میں بیٹھا. بیڈ فرینڈ سے کیا مراد دیتے ہیں؟ مطلب کہ یعنی وہ بھی غلط سنگت کہہ سکتے ہیں آپ. وہ بھی نشہ استعمال کرتے تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی بالکل. وہ فرینڈ جب بنے تو کیا کہیں سے آپ نے تلاش کیے کہ محلے میں ہی تھے یا کالج میں سامنے ملے تھے؟ کالج میں کچھ سامنے آمنے گھر کے آس پاس، مطلب ان کی طرف آپ کی اٹریکشن کیسے ہوئی کہ میں نشہ اٹریکشن ایسے ہو گئی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ یہ چیز یوز کرتے ہیں. میں سگریٹ پیتا تھا، کبھی دل کرے تو ٹھیک وزٹ کرنے گئے کہیں، ویسے ہی دل کیا پی لیا. 1-2 دفعہ بیٹھے ہیں ایسی گیدرنگ میں، یہ ٹرائی تو کر رہا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو آپ نے پوچھا نہیں؟ پوچھا، میں نے پوچھا 1-2 دفعہ پوچھا. تو کیا بتایا؟ پتا تھا مجھے پیتے ہیں یہ لوگ، پتا تھا کہ یہ کیا پی رہے ہیں، یعنی ہیش پی رہے ہیں. جی جی. اس سے پہلے آپ نے نہیں پی تھی؟ اس سے پہلے چکر آ جب انہوں نے پیش کی تو آپ نے 1 دفعہ منع کیا، پکڑ لی. جی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پینے کے بعد کیا کیا کش لگائے میں نے، پھر وہ تھوڑی سی وامنٹ آئی، تھوڑی تک چکر آتے رہے، ذرا سرور میں رہا تھوڑی دیر. پھر دل کیا، بس ایک گھر پہ تھوڑا سا ٹینشن بن گئی. میں نے سکون لینے کے لیے آپ نے یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ پینے کے بعد آپ ریلیکس ہو گئے؟ ہاں جی. الٹی بھی آئی تھی حالانکہ، چکر بھی آئے تھے، پھر ریلیکس کیسے فیل کیا؟ یہ تو مطلب ایک دفعہ جب پلایا نا انہوں نے مجھے، مطلب دل خراب، الٹی نہیں آئی، دل خراب سا ہوا میرا، لیکن تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو گیا. پھر مجھے ذرا تھوڑا چکر آیا، سکون. اس کے بعد میں وہاں لیٹا ایسے بیٹھا رہا. اس کے بعد میں دنیا داری بھول گئی تھی کوئی چکر. یہ تو شروع کی فیز ہے نا؟ جی بالکل. جب جب آپ یوز کر رہے تھے آپ کو اس میں اٹریکشن بڑھتی گئی نا شروع میں، تبھی تو آپ نے بڑھائی نا. وہ کیا وجہ تھی، کیا ایسی اٹریکشن تھی جو آپ کو اور آگے لے کے جا رہی؟ وہ اٹریکشن ایسی تھی کہ مجھے جب تھوڑی سی ٹینشن، کوئی ایسی بات میرے مائنڈ میں اڑ جاتی تھی کہ یار یہ چیز کیوں ہو رہی ہے، میں پھر نا ان دوستوں کے پاس جاتا تھا. کسی کے پاس نہ ہی ہونی تو پھر میں نے خود لینی شروع کر دی، پوچھنا ان سے کہاں سے. فائدے کیا نظر آئے؟ بس سکون، بس ایسے بیٹھنے کے لیے نا کہ سوچ ریلیکس ہو گئے، دماغ سکون میں رکھنے کے لیے بس. اور کوئی چیز نہیں، اور کوئی چیز نہیں. اچھا، یہ تو آپ کو لگا کہ آپ کو سکون دیا. اس کے علاوہ اس نے آپ کو کوئی نقصان بھی دیتی تھی، جیسے کہ نہ ملے یا زیادہ یوز کرنے سے غصہ آتا ہو؟
गुस्सा आता है। या रवैये में कोई तब्दीलियां आ गई हों? नहीं, रवैये में जब मैं उससे आगे गया था ना, हम्म, उस चीज़ से स्टेप आगे मैंने किया था एक दोस्त की वजह से। उसने क्या एक नई चीज़ इंट्रोडक्शन, मैं दुबई चले गया था, वहाँ से वापस आया, मैंने कहा आपको एक नई चीज़ चेक करवाता है इधर। मैं वो फ्लेवर वाला हुक्का होता है, वो शीशा जिसे कहते हैं अरबिक में, वो पीता था वहाँ पे। उसने ऐसी शीशा टाइप बना के छोटी सी बोतल रख दी मेरे आगे, ठीक। उसने मुझे पिलानी शुरू कर दी। हाँ। मैंने पी, 3 दिन बैठा रहा, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। आइस कैसे शुरू की? वो आईसी की बात कर, वो आईसी थी? वो आईसी थी। अच्छा। वो 3 दिन मुझे पता ही नहीं, वहीं बैठा, मुझे ना टाइम का पता, ना दिन ना रात। नींद दिन बढ़ गुजर गई थी गए। कि नींद खत्म हो गई थी? नींद इसका खत्म, मतलब खत्म हो पता गई। ही नहीं चला मुझे। ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये सारे नशे, और भी आपने बताया कि वाइट क्रिस्टल भी थी, ब्राउन जी, ब्राउन, जी, ये जी, सारा जी, कुछ था, ये इस्तेमाल करके आपकी शख्सियत पे मनफी असरात क्या हुए? मनफी असरात ये हुए, मैं मुआशरे में गंदा हो गया था, फैमिली में इज्जत खराब हो इज्जत गई, खराब हो घर गई, में भी, घर में, बाहर, मोहल्ले में मोहल्ले भी। में भी। अच्छा, और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब पे इफेक्ट हुआ, मेरे पे इफेक्ट हुआ। सबसे ज्यादा सिर्फ मुझे इसी चीज एक का। तो इज्जत खराब हुई ना, हाँ, इज्जत। और क्या नुकसान हुए? उसके अलावा रवैये में क्या आपके तब्दीली? रवैये में मुझे गुस्सा आना, गुड, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। मैंने बिला वजह, मतलब बेवजह मुझे गुस्सा आ जाता था किसी हाँ। की छोटी छोटी बात, ये पेंसिल क्यों यहाँ रखी है, ये यहाँ चीज से यहाँ क्यों गई है, बस इसी छोटी छोटी जो बात में नोट हरकत करता था मैं। किसी मुआशरे में आम हालात में हम आम नहीं लोगों करते, में नहीं करते, नहीं करते, वो हरकतें वो भी हो मेरे- जाती हाँ जी, थी। बिल्कुल। जो बात कहीं नहीं करनी वो वो वहाँ भी हो मुंह से जाती, निकल जाती होगी। बाद में ठीक है ना? एहसास होता था, लेकिन एहसास उस टाइम उस वक्त पता होता नहीं होगा चला। जब वक्त गुजर चुका होता हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है ना? बेशक। तो अब ये बताओ कि गुस्सा इस लेवल पे भी आ गया था कि छोटे बड़ी की आपको तमीज नहीं भूल हुई? गई, भूल गई ना? कई दफा। हाँ, बड़ों से भी लड़ पड़ते मैं होंगे। कई दफा। क्या आपको शक की अलामत भी आई थी? मुझे- दूसरों में शक होना शुरू हो गया हो मैं बिला बहुत वजह, ज्यादा, जिसकी बुनियाद ना हो? बहुत ज्यादा। मसलन कि मुझे एक दफा ऐसा फील हुआ कि घर के बाहर कोई मेरी लड़ाई हुई किसी से ऐसे, फॉर एग्जांपल कोई भी है, आप मैं, मेरी आपके साथ थोड़ी टॉक हुई तो हाँ, हमारी फायरिंग होनी शुरू हो गई इधर कॉलेज लाइफ में। ठीक है। मैं आया, मैं डर गया, मतलब आइस पी हुई थी मैं घर में घुसा हूँ, अबू थे, रात का टाइम था, वो फजर के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि बाहर खड़े हुए गन्स ले, हालांकि कोई नहीं था। हालांकि कोई नहीं। वो बाद में मुझे पता लगा ना, मैंने हाँ, हालांकि लेकिन उस देखा वक्त भी, ये मुझे feel नजर थी- भी आ रहे थे, फील नहीं नजर आ रहे थे। अच्छा, नजर आना भी शुरू हो नजर भी गया, आना शुरू हो गया, हेलुसिनेशन भी आना शुरू हो गई ना, और थॉट भी थी कि वो आपको मारने आए हैं, नुकसान पहुंचाने आए हैं, मैं डर गया आपके पूरा, against हैं। मैं जमीन मेरी निकल गई, मैंने अब्बू को उठाया, हाँ, वो ऐसा दवा ऊपर से छत से आवाज सी आई मुझे, हमने परिंदे रखे हैं ऊपर, ठीक है। वो कहीं चिड़ियों ने या तोतों ने कोई थोड़ा बहुत किया, मैं वो माइंड में आ गया, ऊपर आ गया। हाँ, अब ऊपर आ गए। हाँ अच्छा, अब ये बताइए जी जी कि ये जो आपने सारे एक्सपीरियंसेस किए, जी। क्या आपको लगता है कि ये फिर भी करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। ये जो रवैये में मनफी तब्दीलियां आई, जी आज इसको पछतावा है, काश वो ना होता, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा, तो वो तभी मुमकिन होगा जब आप नशे में फिर नहीं जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे। जब भी जाएंगे उससे ज्यादा अलामत बेशक आएंगी। ये लाइफ जो कि बगैर एडिक्शन के है, वो कंफर्टेबल है, सुकून वाली है, या वो थी जो नशे के साथ थी? लाइफ तो फिर जो हमारी सिंपल और जो चल रही है, जो माँ बाप ने सिखाया था वो सही चल रही थी, बस ये गलत ट्रैक पे चढ़ गया था। अब यहाँ रह के आपने क्या क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ दो चार सीखा है। बड़े बड़े पॉइंट बताइए। जी जी, 2-4 बड़े बड़े पॉइंट। हम्म। अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार आज ट्राई कर ही लेते हैं, बाहर निकल के यहाँ से डिस्चार्ज होकर हम जाते हैं बड़े, मेरा दिल करता है, हाँ, तो अपने आप को समझाओ यार मेरा शैतान मारो, नमाज पढ़ने से ले। शाबाश। दोस्तों में बैठ जाओ, अच्छे लोगों में बैठ जाओ, अच्छे लोगों फैमिली में में भी बैठ बैठो। जाओ, मेरे छोटे 2 बेटे हैं। टीवी के एंटरटेनमेंट जी, कर जी, लो, मेरे 2 बेटे हैं। किताब पढ़नी शुरू बेशक। कर दो। और ये जो सोच होती है ना, आती एक क्रेविंग, जी, जी। ये फ्यू मोमेंट्स की, चंद बिल्कुल। लम्हात की होती है। उन लम्हात को अगर हम अच्छा गुजार लें तो वो पास ऑन हो जाती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह यू आर लकी कि आप यहाँ आए हैं, आप खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब रह रहा हूँ, खुश हूँ यहाँ। क्या आप जाके लोगों को मोटिवेट करेंगे कि बेशक। नशा करना अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल। इसके नुकसानात हैं, बेशक। और वो लाइफ गंदी लाइफ थी, ये लाइफ नशे के बाद की
अच्छी लाइफ है। बिल्कुल बेशक, क्यों नहीं। हमें उम्मीद जो है मेरा कि एक्सपीरियंस है वो मैं उनको जरूर शेयर करूंगा। वेरी गुड। डॉक्टर साहब आप प्लीज कुछ पूछना चाहें? डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप बहुत सीनियर हैं, मेरे जो ख्यालात हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ तो उल्टे बात बरेली वाली बात ही है, ऐसी लेकिन बात उसके नहीं, जो भी बावजूद आप चाहें पूछ सकते लेकिन हैं। उसके बावजूद सर मेरा ख्याल है कि ये जो एक एडिक्शन है ये शुरू हमेशा शौक से ही होती है, उसमें हमारे मीडिया का बड़ा किरदार है कि मीडिया इस चीज को ग्लैमराइज करके दिखा रहा है कि जी वो अगर फैक्स ले रहा है या कोई अल्कोहलिक दिखा रहा है किसी बंदे को कि यानी मीडिया इंटेंशनली तो नहीं दिखा रहा, वो तो हमने भी देखा, यानी हाँ। ड्रामों में, ड्रामों- फिल्मों में ऐसा जब कैरेक्टर आता है हाँ जी। तो लोग उससे एक्साइट होते हैं। एक्साइट आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे, यानी बिल्कुल इंटेंशनली नहीं है, अ पार्ट ऑफ ड्रामा और अ पार्ट ऑफ फिल्म। बिल्कुल ऐसे। जब वो दिखाया जाता है तो वो उसके एंड को नहीं देखते कि इस पीने वाले का एंड क्या हुआ, End क्या? बस वो पार्ट ऑफ टाइम जहां जब उसने पी, जब उसने जी। अपने को बहादुर शो किया, ऐसा शो किया कि मुझसे बड़ा है ही कोई नहीं, है ही कोई। वो जो फेज है उसको लोग वो एक्साइटमेंट glamorize हो- उसको कॉपी करते हैं, ग्लैमराइज होते हैं, वो कॉपी डॉक्टर करते हैं। ग्लैमराइज हो गया। ये अब कहना जब चाह रहे हैं? glamorize- बिल्कुल ऐसे। हाँ। अब जब वो ग्लैमराइज हुआ, अब जब उसको दिखा दिया गया तो जाहिर सी बात है कुछ जहन इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते हाँ। कि वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझ सके। ठीक। जब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पकड़ लेते हैं कि जी इससे तो पता नहीं जो हमारे अब जैसे मूवीज के अंदर हीरोज को दिखाया जाता है कि जी अच्छा हीरो ये काम करते हैं, वो अपने आप को शख्सियत में लेके आने के लिए तो फिर यहाँ से शुरू करते ठीक। हैं, और जब वो एडिक्शन बन जाती है तो फिर वो जाहिर सी बात है जैसे आपने भी बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, तो ये सारे मसाइल फिर देखने के लिए हमें मिलते हैं। सर साहब आप कुछ एज अ विजिटर आपने मैं कुछ तो- पूछना हो इनसे, डॉक्टर साहब से, मुझसे? जितने भी मैंने सर जो बातें सुनी है इस पे यही है कि जो ड्रग्स है ये तो बहुत बुरी लानत है, हाँ। लेकिन इसकी रोकथाम करने के लिए हमारी जो है गवर्नमेंट को बड़ी सख्ती से कुछ ना कुछ ऐसा करना यानी चाहिए। अवेलेबिलिटी को, हाँ जी, रोका जो जाए। इजी अप्रोच है ड्रग्स की Approach तरफ, है। उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हर बंदे की अप्रोच में ना आए। अप्रोच में ना आए। अगर हम अवेलेबिलिटी फैक्टर को कंट्रोल कर लें तो बहुत से मसाइल और हल हो सकते हैं। पेरेंट्स हैं जी साहब उनसे- ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें हाँ वेरी और नाइस। उनकी जो है रोजमर्रा की जो जिंदगी पे उनकी जो है खेल कूद और उनके सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनके दोस्तों पे नजर रखी जाए कि वो पॉजिटिव शाबाश, है या very good। नेगेटिव है, उन पे हाँ। रखनी चाहिए जबरदस्त। ताकि उनके आने वाले बच्चों का फ्यूचर प्लान जो वो अच्छा हो सके। हाँ वेरी नाइस। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं साहब साहब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेरी नाइस। साहब भाई आपकी बातों में बड़ा वजन है। ये इसमें हमारी गवर्नमेंट का रोल तो है ही है, मीडिया का रोल भी है, इसमें पेरेंट्स का रोल है, जो अच्छे Main जो फ्रेंड्स है हैं वो है। उनका रोल है। इवन स्कूल में जिस एनवायरनमेंट लोग आप नोट किया आजकल बच्चे बताते हैं कि हम कैफेटेरिया पे बैठ के पी रहे होते हैं, वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यानी स्कूलों में, कॉलेजेस में ये इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि बच्चों की एक्टिविटीज क्लास से हट के प्ले ग्राउंड में, कैफेटेरिया में, जहाँ एंटरटेनमेंट एरिया, वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज कैसी हैं जी। उनको वॉच करना चाहिए। दरअसल इसमें एक और बहुत बड़ी जो रीज़न हम देखने में आई है अक्सर, इनसे आजकल हमारा ताल्लुक रहता है थोड़ा सा, कि जो ये जितने भी नुकसान इसने भी आपको बताए हैं हमारे इस पेशेंट ने, ये सारे के सारे जो ड्रॉबैक्स हैं ये पेशेंट को पता लगते हैं जब वो रिकवर हो रहा होता है। यस बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसका आप ठीक है। कि इसमें हमारे पास एक तो इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी भी, हाँ। अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी कहाँ 1/4 भी नहीं। 1/4 में हाँ, कि आप सही जी- कह रहे हैं। कि जी हमें दाखिल करवाना चाहिए, ऐसे मरीज का हाँ। इलाज करवाना चाहिए, ये काबिल इलाज मर्ज। तो वो जब अब देखें मेरे से बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि जी मुझे ये लगता था, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये कंपैरिजन है, हाँ। अब वाला और पहले वाला। जब हम कंपेयर कंट्रास्ट करते हैं फिर हमें उसके ड्रॉबैक सारे पता लगते हैं। अब अभी- तो मरीज को लग रहा था मैं ठीक हूँ बेटा। अभी आपने नोट किया होगा कि कितने सालों से इसमें था, जी। और ये वेस्टेज ऑफ टाइम कितने सालों का है जो इसके साथ एसोसिएट हुआ। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। यही जो टाइम है अगर यूजफुल हुआ होता तो ये कहीं कारामद शख्स बन चुका बन होता। चुका होता। कितना टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन अब भी अगर आप इसी पे लगे रहे कि अच्छा इतना टाइम वेस्ट हो गया तो आगे कुछ नहीं मेरी करेंगे, उम्मीद उस टाइम को आज भी भूल के हम उससे आगे बढ़ेंगे और जो बाकी टाइम है उसको यूजफुल टाइम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। Yeah.